That was IH bar del psi by del t is equal to minus h bar square by 2m del 2 psi by del x square plus Vx psi. और इसको हम आगे यहाँ पे we can take t also. So अगर इसको 3 dimensions में लिखना है तो it becomes del psi by del t is equal to minus h bar square by 2m del square psi plus Vx. Here I am considering the general case. हमारा जो पोटेंशियल है वो x और t दोनों का फंक्शन है. यहाँ पे भी हम रिटेन रख सकते हैं क्योंकि we are not separately differentiating this part. तो अगर आप यहाँ पे भी if you keep t, it is not going to make the difference. Okay, so that is our time-dependent Schrodinger equation. Now we will be moving to time-independent Schrodinger equation. पहली बात जो अराइज होती है वो ये है कि टाइम डिपेंडेंट से टाइम इंडिपेंडेंट पे जाने की जरूरत क्या है. उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल्स वी कंसिडर दे आर नॉट टाइम डिपेंडेंट, दे डोंट चेंज विद टाइम. अगर हम एक एटम लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. फिर अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं, बहुत सारे केसेस में हार्मोनिक ऑसिलेटर इज वेरी सिग्निफिकेंट. मतलब अगर हम अपने आसपास कोई भी प्रोसेस स्टडी करें तो वील फिगर आउट के इट इज अ हार्मोनिक ऑसिलेशन. जैसे इवन इफ वी आर स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, you speak, in that case also the oscillations are harmonic in nature. The molecules, they oscillate, and when they oscillate they damp and finally they come to their equilibrium position. But they are oscillations which are harmonic in nature. Damping होने के कारण they get back to their equilibrium position. But lot of processes are there which are harmonic in nature. तो अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल भी लें तो दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर. दैट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल्स हैं विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. और अगर हमारे पास पोटेंशियल्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, वी डोंट नीड टू कंसिडर द टाइम डिपेंडेंसी इन गेटिंग द सॉल्यूशन. So over here, let's consider how we can get the time independent Schrodinger equation. अब हमारे पास जो टाइम डिपेंडेंट है वो ये है. ये हमने लिखी थी इनिशियल. इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो साई है that has both the components x and t. ठीक है, तो हमें जो चाहिए, we don't want this term. टाइम डिपेंडेंसी इसी में दिख रही है. एंड बिसाइड्स दैट जो हमारा वेव फंक्शन है, अगर हमारा ये पोटेंशियल हम रिप्लेस कर देते हैं इससे, that is it does not depend on time, then things become quite simple and we can get solutions much easily in comparison to when the potential is time dependent and we have the time dependent part in the wave function. So what we can do is, it's a differential equation.
तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इजीएस्ट वे होता है सॉल्व करने का वो ये होता है, अब अगर हम ये इक्वेशन देखें, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू वेरिएबल्स x एंड t। तो इन केस हमारा जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड ना करके सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कुछ हद तक तो नाम ही बता रहा है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का मतलब है कि हम इस इक्वेशन को ब्रेकअप कर दें in terms of two equations where each equation is independently containing just one variable। मतलब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन आए, दो में एक is a function of x only, other is a function of t only, then this equation will be our time independent Schrodinger equation। So in order to do that, what we can do is, let's write this in terms of two functions। ठीक है, so this is function of x only and this is a function of t only। Also
बेटे कहाँ से ब्रेकअप हुआ था? देयर वाज अ पावर कट एंड आई थिंक द कनेक्शन जस्ट ब्रोक. मैम उनको डिफरेंट फंक्शंस में आपने सेपरेट कर लिया था. Okay. So what I was saying was that we can write the wave function in terms of functions of x and t. और उसके बाद I just wrote down the equation in terms of phi and tau. तो इसके बाद अब यहाँ पे this is a function of t, this is a function of x, तो दूसरा function यहाँ हमारे पास बाहर आ जाएगा. So what we have is this thing, del phi by del, sorry, here it is. So we have phi here is equal to minus h bar square by 2. Here we'll have the other function out. And so we'll have this. Plus Vx times. Here both functions will be remaining same. Okay. So now what we can do is we can divide the whole equation. Let's mark this as 1. Let's consider this as 1. This is 2. So dividing 2 by 5 down. So what we get over here is IH bar delta by del t is equal to minus h bar square by 2, 1 by 5 plus dx. Okay. अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, this is a function of t only and this is a function of x only. So we have succeeded in obtaining an equation जिसमें हमारे पास दोनों साइड्स पे जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग वेरिएबल्स के की पॉलिनोमियल्स हैं और इस साइड पे सिर्फ t डिपेंडेंसी आ रही है और इस साइड पे x डिपेंडेंसी आ रही है. अब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन अराइज हो गई है where one is just a function of t and the other is just a function of x, उस particular case में we can't say these two are equal unless and until both of them are equal to some constant. Isn't it? अगर हमारी दोनों साइड्स पे एक साइड सिर्फ t डिपेंडेंट है, दूसरी साइड सिर्फ x डिपेंडेंट है, तो वो दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं अगर दोनों के दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो. That implies that it should be some constant value to which both sides will be equal. So going by that way, we have IH bar delta by del t is equal to g, and the other one we'll have minus h bar square by 2m 1 over 5x del 2 5x by del x square plus vx is equal to g. Now this g actually comes out to be equal to E. कैसे आता है that I'm not going to discuss over here. अगर आपको देखना है, you can check the Iceberg and Resnick book. Otherwise, you can simply consider it to be equal to E. So from there, what we have is del T is equal to E, and the other equation becomes
That's it. Where E over here stands for total energy, जो हमने शुरू में कंसिडर की थी. Okay, so what we have is IET by H. And here we have the second equation, which we can write as plus okay. So this equation, which I have written here, so this gives us the time dependent part, और जो हमारे पास time independent part है, that is this equation. So this corresponds to time independent Schrodinger equation. Okay. अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के केस में डिड यू आस्क मी टू स्क्रॉल? यही बोला था. बेटे आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही. मुझे सिर्फ इतना आइडिया हो रहा है कि आप कुछ मूव करने के लिए बोल रहे हो या एक्सप्लेन करने के लिए. क्या एग्जैक्टली बोल रहे, वो नहीं क्लियर हो रहा. हेलो मैम. हाँ जी, नाउ इट्स बेटर. टाइम डिपेंडेंट वाली इक्वेशन. अच्छा ठीक है. ये वाली कह रहे हो आप? यस. ओके. तो बच्चे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो दोनों साइड्स आ रही हैं वो दे आर कमिंग आउट टू बी फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल ओनली. इस साइड पे हमारे पास x डिपेंडेंट आई है और इस साइड पे हमारे पास t डिपेंडेंट फंक्शन आया. तो इसलिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, एक x का फंक्शन है सिर्फ और एक t का, हम इसको कांस्टेंट के इक्वल मान सकते हैं. एंड देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन वी हैड ऑब्टेन्ड फॉर टाइम डिपेंडेंसी, और दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. और मैंने कहा g comes out to be equal to e, इसलिए we substituted it over here as e. Now you want me to do the step which took this equation to this part? Yes ma'am. Okay. So in that case what I have done is this thing. यहाँ e लिखा था हमने और यहाँ tau था. So what I have done over here is this. E over IH bar t integrated. And so what we get over here is function of natural log of tau t. अगर हम इनिशियल पॉइंट को 0 कंसिडर कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास. एंड ओवर हियर इट विल बी ET over IH bar. तो ये हमारे पास आ गया. यहाँ पे you can have a constant also which will be the constant of integration, जो मैंने यहाँ पे अभी जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा उसमें नहीं लिखा था. So what you get over here is ET over IH bar
I को अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव यू e raised to power minus et over minus I et over h bar. ठीक है? Okay. So that was the Schrodinger equation which we are going to use in rest of the problems. ये हमने जितने भी आगे के एप्लीकेशंस करने हैं सब में यही इक्वेशन यूज होने वाली है. इसका 3 डायमेंशंस में जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी del 2 phi plus h bar square by 2m e minus v phi is equal to 6. So this corresponds to del 2 by del x square phi plus del 2 by del y square phi plus del 2 by del c square phi. Laplacian जो हमने ऊपर लिखा था वो सेम है. और यहाँ पे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस थिंग कि यहाँ हमने फाई यूज किया है तो इसको हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. ये दोनों इक्वेशंस का मतलब सेम है. दिस इज जस्ट अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन. तो वो चाहे आप फाई से रिप्रेजेंट करो या साई से रिप्रेजेंट करो उससे नहीं फर्क पड़ता. डोंट कंसिडर कि अगर हम साई की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा टाइम डिपेंडेंट होगा और फाई इज टाइम इंडिपेंडेंट. यू कैन कंसिडर साई आल्सो टू बी टाइम इंडिपेंडेंट. ठीक है. यहाँ पे हम सिर्फ क्योंकि जब हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल ली वी सेपरेटेड द टाइम डिपेंडेंट पार्ट फ्रॉम दिस पार्ट. तो हमारे पास जो हम वेव फंक्शन भी हमारे पास आएंगे अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दे ऑल विल बी हैविंग जस्ट द पोजीशन पार्ट. ये फंक्शन सारे के सारे चाहे आप del 2 phi लिख रहे हो या psi लिख रहे हो जब आप ये इक्वेशन लिख रहे हो यू आर सिंपली कंसिडरिंग द फंक्शन टू बी पोजीशन डिपेंडेंट. इस पर्टिकुलर केस में पोजीशन डिपेंडेंसी ही आएगी हमारे पास. टाइम डिपेंडेंसी वाला पार्ट हम सेपरेट कर चुके हैं. Okay, so that was about the Schrodinger equation. अब Schrodinger equation के बाद let's see what comes next. The next is operators. आपकी बुक में जो दिया हुआ है Schrodinger equation के बाद that is expectation value, but I prefer to go the operator way first. पहले operators करवाऊंगी उसके बाद expectation values करवाऊंगी. Another important thing which I must tell you is that ये जो wave function हमने या Schrodinger equation हमने evaluate की थी that was by considering the free particle wave function, isn't it? But इसका मतलब ये नहीं है कि ये equation free particle के लिए ही valid है. It is valid for all systems, all bound systems also. And when we say it is bound for all systems, it is not something which is a statement coming with a theoretical idea. It is something which has been proven in the experimental results. कि although इस इक्वेशन को जब कंस्ट्रक्ट किया गया था उस टाइम पे इसकी कंस्ट्रक्शन में एज्यूम वेव फंक्शन किया गया कि जो वेव फंक्शन हम जिसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं या एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन लेके इस इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विच वाज ऑफ द फ्री पार्टिकल. बट जब इक्वेशन फॉर्मुलेट हो गई एंड व्हेन इट वाज अप्लाइड टू अदर सिस्टम्स आल्सो इट वर्कड गुड इनफ. सो दैट वाज समथिंग which is obtained experimentally, which is an experimental result and not something coming from a theoretical background. कौन घूम रहा है कहीं पे? हिनीश ट्रेवल कर रहे हो कहीं?
दिनेश क्या कर रहे हो बच्चे, अपना माइक ऑफ करो। Okay, so what does operators mean? They are also mathematical expressions actually, or we can say mathematical operators representing physical quantities. वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज आपने अब तक भी जो पढ़ी हैं उसका एक रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ा ही है, जस्ट अ मिनट। ओके, अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, क्योंकि दैट वी नो बेटर, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिकल क्वांटिटीज लाइक अगर हम फोर्स बात करते हैं तो दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज गिवन बाय d2x by dt स्क्वायर। हमारे पास हमें x भी पता होता है, हमें टाइम भी पता होता है, एंड वी कैन इवैल्यूएट इट। एंड सिमिलरली फॉर एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, it's half mv square, which is half m dx by dt। अब हमारी प्रॉब्लम ये है क्वांटम मैकेनिक्स में, x ही तो नहीं पता चलता हमें, इट इज नॉट एक्यूरेटली, इट कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड, और हमारे पास पार्टिकल नहीं है, हमारे पास वेव फंक्शन है। दिस वेव फंक्शन इज समथिंग एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। तो हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे हमें उसकी पोजीशन पता लगानी है, चाहे उसका मोमेंटम पता लगाना है, चाहे एनर्जी पता लगानी है, वी हैव टू गेट इट फ्रॉम हियर। ओके, तो किस तरह से करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन अगर हमें चाहिए, we'll again go back to the free particle wave function, which is given by a e raised to power I px minus et। ये एक्सप्रेशन लिखा था हमने, ठीक है, और हमने p और e की वैल्यू वहां से निकाली भी थी, वैसे निकाली थी। अगर हम p की बात करते हैं, we get del psi del x, that gives us h bar। So we have IH bar A e raised to power I by h bar px minus et। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ हमारे पास, इनटू p, यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो ये वाली वैल्यू a into this is same as the wave function, p times psi। So what it implies is, इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं,
h bar over I del psi by del x is equal to p psi लिख सकते हैं और माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स एक्टिंग ऑन psi x is equal to p times psi x. तो इसका मतलब अगर हम ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है हमें? एनी गेसेस? एनीबॉडी? सिर्फ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के बोलना है, डोंट गेट एनी अदर काइंड ऑफ थॉट्स कि नहीं ये कैसे हो सकता है. जस्ट लुक एट दिस एक्सप्रेशन एंड थिंक व्हाट इज इट, हाउ वी कैन कंसिडर द मोमेंटम हियर. पी हमारे पास मोमेंटम ही है, मोमेंटम की वैल्यू है, तो हम क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं इस इक्वेशन से? Anybody? गुरदीप? p with respect to x चेंज नहीं हो रहा. P with respect to x चेंज नहीं हो रहा, ये आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? ओके अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली ये है, दिस इज द ऑपरेटर एक्टिंग ऑन दिस फंक्शन रिजल्टिंग इन द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. ये P हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज एन ऑपरेशन इन इटसेल्फ. डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना ये बेटे? तो यहाँ पे when this operator is acting upon the wave function, what we are getting is the value of momentum of the particle represented by the wave function. So this implies this expression represents the momentum operator. Okay, so here we have obtained the momentum operator. ठीक है? Is it fine? Making sense? P cap का मतलब है this cap represents the operator. ये जो P है that represents the value of the momentum and this represents the operation being done on the wave function which will give us the value of momentum. So P cap itself represents the operator. Okay. Similarly, you can evaluate the value for energy operator. आ जाएगी? क्या आएगा energy operator का expression? Can you evaluate it?
करो आप लोग अपनी नोटबुक्स में। फिर से वेव फंक्शन कंसिडर करना है। साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आई बाई एच बार पी एक्स माइनस ई टी। मैम हाँ जी बच्चे, मैम ऊपर पेज दिखाना, ऊपरला पेज। बस मैम नीचे थोड़ा सा, बस मैम। ओके यस मैम, डन। ओके बच्चे। हुआ बच्चे? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम एनर्जी ऑपरेटर में बस डेल एक्स की जगह डेल टी आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। हाँ जी, साइन भी चेंज होगा मैम। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so energy operator comes out to be IH bar del by del T. That is the expression for energy operator. This is operator which corresponds to total energy. Okay. Now another representation of total energy under non-relativistic circumstances that's given by another we can say another operator. This is H, it is called Hamiltonian. This is also equal to kinetic energy plus potential energy. Okay. And it can be written as P square by 2m plus Px. Okay. ठीक है बेटा? मैम ये एच क्या है? H is Hamiltonian.
just to Constant give you है क्या है क्या मैम ये H हैमिल्टोनियन का मतलब होता है एक तरह से ये एक फंक्शन ही है which is total energy equal to total energy where total energy is kinetic energy plus potential energy. तो जहां हमने ऊपर पहले उसको E लिखा था, E से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम टोटल एनर्जी को, और दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है Okay, ma'am. टोटल एनर्जी का वो हैमिल्टोनियन भी उसको बोलते हैं. ओके मैम इसका थोड़ा जस्ट इट्स ओके लीव इट. आप लोगों ने जैसे डायनामिक्स पढ़ी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, उसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स में लेटर ऑन and in today's time also the dynamics is studied using energy, total energy of the system, and the total energy is represented by kinetic energy plus potential energy, which is called the Hamiltonian of the system. तो यहाँ पे एक तरह से हम जब एनर्जी की बात करेंगे तो दैट एनर्जी कैन ईदर बी दिस, वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय टाइम रेट ऑफ चेंज, और वी कैन रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ this expression which is actually a function of x only. अगर हम भी यहाँ p square, जैसे आपने p की वैल्यू हमने इवैल्यूएट की थी माइनस आई एच बार डेल बाय डेल एक्स, तो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर हम p स्क्वायर ऑपरेटर कंसिडर करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस एच बार स्क्वायर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर. ठीक है, यही आएगी. आ जाएगी बेटे. Yes, ma'am. यस मैम So if we want to write the expression for Hamiltonian operator, that will be given by minus h bar square by 2m p square plus px. Okay. तो ये हमारा थर्ड ऑपरेटर आ गया विच इज द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. अगर आप यहाँ से अगर आप हैमिल्टोनियन याद रख पाते हो और एनर्जी ऑपरेटर का एक्सप्रेशन आप लोगों को याद है, then you can simply write this as h psi is equal to e psi. ठीक है, क्योंकि ये भी टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर आप इन दोनों का ऑपरेटर फॉर्म लिखते हो, so what you get over here is, here you have minus h bar square by 2m psi del x square plus px times psi is equal to minus I h bar del psi by del t. Now you can see this is time dependent Schrödinger equation. ठीक है, और इसी इक्वेशन में अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि E ऑपरेटर psi पे एक्ट करके आपको एनर्जी E दे रहा है, that is the value of energy after the operation of the energy operator is E, then it will become E psi xt. और आपके पास यहाँ पे यही इक्वेशन से ये आ जाता है माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m del 2 psi by del x square प्लस px psi xt. और क्योंकि यहाँ पे हम t डिपेंडेंसी तो कंसिडर नहीं कर रहे, यू गेट, और t हमारे पास वैसे भी सेपरेट हो ही जाता है, विच वी हैव सीन इन टाइम इंडिपेंडेंट Schrödinger इक्वेशन.
तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एच बार, नॉट माइनस आई एच बार, so this is giving you time dependent Schrodinger equation, and here you have time independent Schrodinger equation. I'm just telling you how you can remember the things, कि अगर आपको सिर्फ ये फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन ही पता है तो आप इसको यूज करके एनर्जी ऑपरेटर निकाल सकते हो, मोमेंटम ऑपरेटर निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आपको याद है, ये तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हैमिल्टोनियन में आप एक साइड पे ये एक्सप्रेशन और दूसरी साइड पे एनर्जी का ऑपरेशन डालते हो, यू गेट टाइम डिपेंडेंट। और अगर आप ये एज्यूम करते हो कि एनर्जी ऑपरेटर वेव फंक्शन पे एक्ट करके आपको एनर्जी की वैल्यू दे रहा है, तो आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाती है। तो एक्चुअली दीज फ्यू थिंग्स सम अप होल ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। अगर आपको थोड़ी सी भी चीज याद है, यू कैन ऑलवेज मूव टू द श्रोडिंगर इक्वेशन और यू कैन डिराइव द श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, ये हम ऑल्दो उसमें भी बात कर चुके हैं, पर आपकी बुक में अलग से टॉपिक दिया हुआ है, सो आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट, लीनियरिटी एंड सुपरपोजिशन। जैसे कि हमने जब श्रोडिंगर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट की थी तो हमने कुछ सपोजिशंस लिए थे इनिशियली, कुछ प्री कंडीशंस कंसिडर की थी, उसमें हमने लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट कंसिडर किया था। सो व्हाट इट इम्प्लाइज इज कि अगर साई 1 और साई 2 इफ दे आर द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, then C1 times psi1 plus C2 times psi2, that will also be solution of Schrodinger equation. Okay. इसका मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग आई विल जस्ट लेट यू नो। इसका मतलब है कि यहाँ पे what is getting added is not the probabilities but the wave functions. Although हम ये चीज डिस्कस कुछ हद तक पहले भी कर चुके हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विद वियर्ड रिजल्ट्स। यहाँ पे ये है, दिस इज अ स्लिट, एक सिंगल स्लिट है, निशिमा मैम का कैबिन आगे है, लॉक्ड है तो फिर वो नहीं होंगे। हाँ, ये स्टेयर्स के साथ है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कंसिडर अ सिंगल स्लिट। यहाँ पे हम कंसिडर करें देयर आर बुलेट्स which are being fired from the slit. Okay, and the resulting pattern over here will be something of this kind. That will be the intensity pattern. Okay, so here what we are considering is, let's say, bullets. और इसकी जगह अगर हम bullets are replaced by electrons, then also we'll get a similar pattern, right? Now let's consider double slit, like the Young's double slit experiment. और अभी भी अगर bullets consider कर रहे हैं हम यहाँ पे, that's the source, तो in that case the kind of pattern which will be obtained will be something of this kind. यही होगा,
एक इस स्लिट के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक इस स्लिट के कॉरेस्पॉन्डिंग, दो इंटेंसिटीज की हमारे पास पीक्स आ जाएंगी. Isn't it? Do you all agree? Yes, ma'am. Okay. Now in case this is replaced by, यहाँ पे पहले हम bullets consider कर रहे थे. If they are replaced by electrons, then what happens? तो यहाँ पे जो पैटर्न आता है, that is something of this kind. So what we get is an interference pattern. और अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, that is sum of probabilities from slit 1 plus slit 2, then we won't be getting the interference pattern. For that, what need to be added is psi 1 plus psi 2. So when you add this, अगर हमारे पास साई का ये एक्सप्रेशन है, साई स्टार का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास C1 स्टार, C1 स्टार implies the complex conjugate of C1, यहाँ आ जाएगा psi1 स्टार plus C2 स्टार, psi2 स्टार. So when we take the square of modulus of this wave function, what we'll get will be mod of C1 square psi1 square plus mod of C2 square mod of psi2 square plus C1 C2 star psi1 psi2 star plus C1 star C2 times psi1 star psi2. So इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, it is not only the amplitudes which are coming up in the total probability distribution which we obtain, but the phases are also involved here, as you can see. अगर यहाँ पे हम कहें कि e raised to power I k1x है, यहाँ e raised to power I k2x है, so the phase part is also there, which is actually responsible for this interference pattern. So over here, it is not the intensities or the probabilities only which are adding, it is the wave functions which are adding. Okay. And because the dependency is linear, that is, the powers of the wave functions which are being added is just one. Therefore, what we can say is that the wave function is linear in nature, and what is being added is the wave functions themselves, not their intensities. और एक interesting चीज जो इसमें है वो ये भी है कि अगर हम observe करने की कोशिश करते हैं, if we try to figure out the particle like behavior of the electron, ये slit अगर हम यहाँ पे detector रख देते हैं, slit 1 के आगे हमने रखा detector 1, तो ये जो pattern है it goes off. What is left is just an intensity pattern which is coming from slit 2. अगर इधर डिटेक्टर रख देते हैं तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे एक इसी तरह का intensity distribution आ जाता है. So the wave behavior goes off when we try to figure out the path which the particle is following. So actually the wave and the particle behavior, they are complementary to each other. If one is there, the other does not. तो यहाँ पे भी जब हम कहते हैं wave behavior है तो उस time पे it is not the intensities or the probabilities which are adding up, it is the wave functions themselves which are adding up, or they superimpose in order to give us the interference pattern. Okay. ठीक है बेटे? Yes, ma'am. Okay.
So that's all for today. कल हम करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यूज और साथ में 2-3 ऑपरेटर्स और हैं which need some background which I will be formulating before getting to those operators and then we'll do the expectation values. आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट माइनर का सिलेबस है वो श्रोडिंगर इक्वेशन तक आएगा, ठीक है? एक्सपेक्टेशन नहीं बच्चे, मैं बोल तो रही हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन तक आएगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तक, ठीक है? हम ऑपरेटर आएंगे। नहीं, ऑपरेटर्स नहीं आएंगे। ठीक है। आकृति, Present, ma'am. आरव,